Hello friends, I'm your career coach. Welcome to Career Launch of Mumbai YouTube channel. My name is Yogendra. Today we are going to do how to register for CAT 2024. So while you're filling a CAT 2024 registration form, there are some few details we should keep in your mind when you're filling the form. The first thing is that there are some documents which you have to upload while you're filling the CAT form. The first document which you have to upload is your photograph. So your photograph has to be with the white background. Great. Second, you have to have your signature, which is also in the white background. These both the copies you have to keep in a soft copy manner so that you can upload it while you're filling the form. Third thing you should understand when you're filling the form is that there are some basic details they are asking you. For example, your name, your contact number, your date of birth, your email ID. तो ये वही ईमेल आईडी डालना है जो एक्टिव है, वही कॉन्टैक्ट नंबर यूज करना है जो एक्टिव है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं करनी, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं। और ये एक बार आप फिल करने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। अगर आपकी ईमेल आईडी में या आपके कॉन्टैक्ट नंबर में कोई गड़बड़ है तो आपको बेसिक ओटीपीज या बेसिक इंफॉर्मेशन जो उनके पास से शेयर होने वाला है वो नहीं आ सकता। सेकंड, अगर आपने अपने नाम में गड़बड़ कुछ किया है तो आगे जाके आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक किया है तो भी आपके आगे आगे जाके एप्लीकेशन प्रोसेस में गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट आपके साथ रखिए, ताकि जो बेसिक चीजें वो मांग रहे हैं वो हम सही से डाल पाए। तो विल स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नाउ। एंड जब रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं पूरा चीज बेसिक डिटेल में बताऊंगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वॉचिंग while watching the video you can also fill the form. So we'll start with the how to register. So there is an option called new registration. यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे। वो बेसिक डिटेल आपको भरने हैं। जैसे अगर आप पॉइंट नंबर 4 को पढ़ोगे तो कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, as these details cannot be changed once the registration is completed. Okay, so I'll put my name as per the 10th mark sheet. See, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है candidate name should be entered exactly as it's appear in 10th/SSC certificate. Only alphabets are allowed. So I'll write my name as per my 10th mark sheet. So I'll write my name. Then I'll asking me for my date of birth. So I'll enter my correct date of birth. First I'll select the year, then I'll select the month, and then I'll select the date. Then I'll enter my email address, which I'm accessible. Then I'll confirm my email address again. Then I'll put my country. So I'll put it as India. If you not belong to India, you have option to call others. You can select on others. Then I'll enter my contact number. I'll confirm my contact number. Then I'll go below and I'll click on I agree. So you read the information here, declaration. Click on I agree. Then put your capture the case जो वहां पे दिया हुआ है. Then I'll generate the OTP. तो ये बेसिकली वो इसलिए मांग रहे हैं कि आपने जो ईमेल आईडी या आपने जो मोबाइल नंबर सबमिट किया है उस पे वो एक ओटीपी भेजेंगे, ताकि वो वैलिडेट हो जाए कि वो करेक्ट ईमेल आईडी और करेक्ट मोबाइल नंबर है। तो पहले वो मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा जिसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको आपके ईमेल एड्रेस पे जाना है, और आपके ईमेल एड्रेस पे जाके आपको और एक ओटीपी के लिए मेल आया होगा। उस मेल पे जाके आपको और एक ओटीपी दिया होगा, वो ओटीपी ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। जब ये हो जाएगा तब आपको नीचे आके कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद वो वापस आपसे कंफर्म करेगा कि आपने जो नेम डाला है वो सही या नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है या नहीं है, आपका ईमेल आईडी करेक्ट है या नहीं है, आपने जो कंट्री सिलेक्ट की है वो करेक्ट है या नहीं है, और आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्लिक ऑन सबमिट, एंड देन माय एक्चुअल एप्लीकेशन विल स्टार्ट।
तो उनसे जो मुझे उन्होंने उनसे जो उनको जो मुझसे बेसिक डिटेल चाहिए थी वो उन्होंने ले ली। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, माय मोबाइल नंबर, माय नेम, माय ईमेल आईडी, कंट्री। एंड नाउ आई विल स्टार्ट फिलिंग माय एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, गो टू एप्लीकेशन। अगर आप ठीक से देखोगे तो यू हैव ऑप्शन हियर विच इज कॉल्ड गो टू एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो दिया हुआ है, इस पे क्लिक करने के बाद आपका बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। नाउ विल स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे देन दे आस्किंग मेरा बेसिक डिटेल जो मैंने पहले एंटर की हुई है, बट वापस वो मुझसे माय फर्स्ट नेम पूछेंगे। माय फर्स्ट नेम आई एंटर हियर, देन माय फादर नेम, देन माय सरनेम, देन लास्ट माय फादर नेम अगेन, फादर नेम और गार्डियन नेम, देन लास्ट माय मदर्स नेम और गार्डियन नेम, देन स्पाउस नेम में कुछ नहीं आएगा, date of birth, then they'll asking me to select my gender, so I'll select my gender, nationality Indian, category. So let's say for example if you belong to a general category or open category, you click on general. If you belong to EWS category, which is economic weaker section, तो इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन में आपको एक सर्टिफिकेट लगता है जो आपको आपको बनाना पड़ेगा, जहां पे इनकम क्राइटेरिया है 8 लाख बिलो। सो योर इनकम, फैमिली इनकम शुड बी बिलो 8 lakhs, देन ओनली यू कैन अप्लाई टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। देन उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया होगा, वो सर्टिफिकेट का इश्यू डेट यहाँ पे डालना है। फिर वो कौन से स्टेट का सर्टिफिकेट है वो डालना है। फिर सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट, आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक सीरियल नंबर होगा वो एंटर करना है। एंड देन कास्ट एंड ट्राइब, जहां पे जनरली आएगा, बिकॉज ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आता है, बट जनरल कैटेगरी में जिनका इनकम 8 lakhs के नीचे है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे ही अगर आप एनसी ओबीसी, नॉन क्रिमिनल ओबीसी हो, तो उसका डिटेल डालना है। वैसे आपको सर्टिफिकेट इशू डेट पूछेंगे वो लोग, स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट का आपका सर्टिफिकेट है, सीरीज, द सीरीज सीरियल नंबर ऑफ योर सर्टिफिकेट, एंड द कास्ट यू बिलोंग फ्रॉम। ओबीसी में भी बहुत सारे ऑप्शन है कास्ट के, वो कास्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। वैसे ही अगर आप एससी कैटेगरी डालोगे तो एससी कैटेगरी में वो सीधा पूछेगा आपका स्टेट, कौन से स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, then the serial number of the certificate and the caste name. And same applies to ST, scheduled tribe. सेम वापस स्टेट पूछेगा, सीरियल नंबर पूछेगा एंड कास्ट पूछेगा। तो आई पुट इट जनरल हियर। देन दे बिलोंग, डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2026। इफ यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी और डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यस करोगे तो वो पूछेगा इज द डिसेबिलिटी मेजरेबल, यस और नो। आपका एक यूडी यूडी आईडी नंबर होगा, वो आपको एंटर करना है। आपकी कैटेगरी एंटर करना है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके, इसमें से आप कोई पे भी, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आपको एंटर करना है। देन दे आस्क यू डू यू रिक्वायर्ड व्हील चेयर सपोर्ट एट द टेस्ट सेंटर। सो लेट्स से अगर आपको व्हील चेयर का सपोर्ट चाहिए तो आपको यस लिखना है, ताकि उस सेंटर पे वो बता सके पहले से ही कि आप वहां पे आने वाले हो, तो आपके लिए व्हील चेयर की सुविधा वो उपलब्ध करवा दे। वुड यू यूजिंग द स्क्रिबल फॉर द टेस्ट, आप किसी को यूज करने वाले हो आपके टेस्ट में आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद कैंडिडेट हैव टू कैरी एफिडेविट अवेलेबल ऑन कैट 24 वेबसाइट, कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजिंग स्क्रिप्ट। तो एक एफिडेविट कैट के वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो एफिडेविट को डाउनलोड करना है, उसको भरना है, और वो आपके साथ आपको रखना है, और आपको आपका स्क्रिबल आपको अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इसको नो करूंगा। then they're asking me they're asking me my basic address details, my communication address details. So I'll enter my address detail here. So I'll write my address, then I'll select my country, which is India, then I'll select my state, which is Maharashtra, then I'll select my district, which is Mumbai, suburb, and then I'll select my town, then I'll select my pin code. Then they're asking me to enter the alternate email address. It is not compulsory, but आपको डालना तो डाल सकते हो। Then they're asking me is a permanent address as the same correspondent address। अगर आपका सेम एड्रेस है,
आपका परमानेंट एड्रेस और आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस करना है, अगर नो है, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है और आप अभी कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, तो आपको दो बोथ एड्रेस डालने पड़ेंगे. Then they're asking me emergency contact details. So I'll put another contact number and the relation with the person, relationship with the candidate. Then यहाँ पे नीचे आने के बाद वो आपसे दो चीजें जो डाउनलोड अपलोड करने बोलेंगे, वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर फॉर्म. सो नाउ I'll upload my photograph here. ओके, अगर उसकी साइज एंड एवरीथिंग इज करेक्ट तो अपलोड हो जाएगा. अगर उसमें साइज और इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो अपलोड नहीं करेगा. देन आई अपलोड माय सिग्नेचर हियर. So now, so I have uploaded my photograph and my signature, and I'll click on save and next. Now they are asking me to view my photograph and my signature, it is correct or not. So I'll once view the photograph and my signature, and then I'll confirm on save and next. Now, वो data successfully load हो चुका है. Now they are asking me my academic details. ओके, सो मैं एकेडमिक डिटेल में वो मुझे पूछ रहे हैं आपका 10th इक्विवेलेंट. सो विच बोर्ड यू बिलोंग टू. अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सेंट्रल बोर्ड आएगा, अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आपका जो भी स्टेट बोर्ड है उसका नाम लिखना है. देन विच ईयर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर 10th स्टैंडर्ड. सो आई विल पुट इट माय ईयर ऑफ कंप्लीशन. देन आस्किंग मी माय मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपका बेस्ट ऑफ 5 है, ओके तो यहाँ पे नोट पढ़िए, मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंडिकेट्स द समेशन ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका 500 मार्क्स से काउंट हुआ है तो आपको काउंट 600 मार्क्स के हिसाब से करना है. सो यू हैव टू कैलकुलेट 600 marks as maximum. The total marks that you have gained in your 10th standard and then उसका परसेंटेज. तो इसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट व्हाट इज योर मैक्सिमम मार्क्स एंड आपका परसेंटेज क्या होगा. तो इस तरह से मैं मेरा परसेंटेज यहाँ पे डालूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका परसेंटेज लाइक 66.66, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उसको राउंड ऑफ करने बोलेगा. तो आपको डालना है 66.67 काइंड ऑफ, सो वो एक्सेप्ट करेगा. जैसे ही मैंने मेरा 10th मार्कशीट भर दिया, अब नीचे मुझे पूछेगा HSC 12th equivalent diploma course details. So did I completed my 12th or did I complete my diploma? So, उस तरह से आपको क्लिक करना है. देन अगेन वो पूछेगा आपका बोर्ड ऑफ 12th, then the year of completion, which year that you have completed your 12th standard, then discipline, you belong to arts background, commerce background, science background या कोई other background. मैक्सिमम मार्क्स अगेन, अगर आपका बेस्ट ऑफ 5 है तो बेस्ट ऑफ 5 नहीं डालना है, टोटल मार्क्स काउंट करने हैं एंड उसके हिसाब से आपको आपका टोटल परसेंटेज डालना है. तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वापस. इस तरह से आप अपने एग्रीगेट परसेंटेज डालोगे. ओके, देन दे आर आस्किंग योर बैचलर्स डिग्री डिटेल्स, कि आपकी बैचलर डिग्री की डिटेल्स क्या है. सो आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ ए बैचलर्स डिग्री. इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अभी 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है या 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है, यानी अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, अगर आप हो तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं हो तो आपको नो करना है. उसके बाद वो क्वेश्चन है हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री. अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया है तो यस करना है. ओके, सो इस तरह से वो आपको डिटेल पूछेगा. सो अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो आपको जो मार्क्स यहाँ पे डालने हैं वो आपके अभी तक हुए हुए सेमिस्टर्स के कैलकुलेट करके डालने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट बिलोंग टू अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेट्स से ही बिलोंग टू बीकॉम बैकग्राउंड and he had completed his 4 semesters, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4.
उसके और 2 सेमेस्टर बाकी है, विच इज सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। तो अगर आपके 4 सेमेस्टर हुए हैं तो आपको चारों सेमेस्टर का एग्रीगेट निकालना है। तो यहाँ पे आपको पहले पूछेगा वो टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री। सो 3 ईयर, जिनका 4 साल है वो 4 साल डालेंगे। करंट सेमेस्टर आपका अभी कौन सा सेमेस्टर चालू है, तो लेट्स से इफ करंट सेमेस्टर इज 5th सेमेस्टर, तो यू हैव टू पुट 5th सेमेस्टर। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यू बिलोंग टू आईआईटी, एनआईटी, टीम यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो आई क्लिक ऑन स्टेट यूनिवर्सिटी। देन वो कौन से स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो महाराष्ट्र स्टेट। कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। एंड नेम ऑफ द कॉलेज, जो भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो उस कॉलेज का नाम आपको डालना है। वो एंटर करने के बाद वो पूछेगा डिग्री नेम, दैट यू बिलोंग टू बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर्स ऑफ लॉ, बीए वोकेशनल्स, बीबीए, बीएमएस, बीसीए, बीबीए, बीसीएच, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है तो आपको अदर्स डालना है। अगर आपका ऑप्शन है तो आपको वो ऑप्शन डालना है। ओके। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको हैव यू कंप्लीट ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। यही डिटेल आपको पूछेगा वो बेसिकली। ओके। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के आपको फाइनल मार्क्स मिले होंगे। अगर आपको सीजीपीए में मिले हुए हैं तो सीजीपीए के हिसाब से डालना है। अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से मिले हुए तो परसेंटेज के हिसाब से डालना है। ओके। नाउ is asking me the discipline. So I've completed my graduation in commerce. So I'll put it commerce. अगर आपका BMS BBA है तो मैनेजमेंट आएगा। इंजीनियरिंग है तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के ऑप्शंस आएंगे। देन इज आस्किंग यू आर यू बिलोंग टू विच ग्रेजुएशन स्ट्रीम, आर यू इंजीनियर और नॉन इंजीनियर, सो वो डालना है। देन द मंथ एंड ईयर दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, कमेंसिंग योर ग्रेजुएशन, तो आपने कौन से साल में आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। सो यू स्टार्टेड योर ग्रेजुएशन इन विच ईयर एंड विच ईयर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। ओके, सो अभी मैंने डाला है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। सो मुझे डालना पड़ेगा, सॉरी, माय मिस्टेक, मुझे यहाँ पे डालना है हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो यस आएगा। सॉरी, I'll put it again, 3 years, type of university, state, state university, type of Maharashtra, university name, University of Mumbai University, name of the college, degree name, BCom. Then discipline, commerce, graduation stream, non-engineering, month and year of you start the program, month and year you completed your graduation, aggregate marks awarded by university. सो यहाँ पे अगर आपके 4 सेमेस्टर हुए हैं तो चारों सेमेस्टर का एग्रीगेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीजीपीए मिले हुए हैं या आपके सारे सेमेस्टर ग्रेजुएशन हो चुके हैं, तो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है उनको एक फाइनल सीजीपीए मिला ही होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ओके, सो यू टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। अगर आपके सेमेस्टर नहीं हुए हैं सब, आपके सिर्फ 4 या मे बी 6 सेमेस्टर हुए हैं, इफ यू बिलोंग टू नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपके 4 सेमेस्टर हुए होंगे, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल में हो तो उसका एग्रीगेट। So समझो फॉर एग्जाम्पल आई गॉट 8 8 8 8 इन माई ऑल सेमेस्टर, तो 8 into 4 is 32, 32 divided by 4 is again 8। ओके, तो माई एग्रीगेट सीजीपी इज 8, तो आई 8 सीजीपीए को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा
परसेंटेज को, उसका फॉर्मूला या तो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको दिया होगा या तो आपके कॉलेज ने आपको दिया होगा। तो आपको आपके कॉलेज से चेक करना है कि आपका कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है। अगर आपके पास वो कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कन्वर्जन फॉर्मूला के, उस हिसाब से आपको डालना है। ओके, so I'll put my percentage here. Then I'll come. Then they asking me, do you have or you undergoing dual or 5 year integrated course? So I'll say no. But जिनका 5 year integrated course है उनको yes करना है वहाँ। ठीक है। Then click here if you have more than one bachelor degree. अगर आपके पास एक से ज्यादा बैचलर डिग्री है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर LLB और बी फार्म और यू कॉम और समथिंग दैट यू हैव डन एक्स्ट्रा, यू हैव टू क्लिक यस। आपका मास्टर्स डिग्री है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। अदर प्रोफेशनल डिग्री, तो अगर आपने कोई FAI से सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हुआ है देन यू विल से नो। अगर कंप्लीट किया तो यस, नहीं किया तो नो। डू यू वांट टू एंटर योर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स लाइक सच एज CS, ICWA, CMA और समथिंग? अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। CS, ICWA ये सारे कंप्लीटेड प्रोग्राम है। अगर आप फाइनली कंप्लीट कर चुके इस चीज को तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। देन you have to go and save and next. You have to click on save and next. Okay. Then यहाँ पे आ जाता है प्रोग्राम डिटेल्स। तो यहाँ पे इफ यू सी यू विल हैविंग लॉट ऑफ प्रोग्राम। आई एम इन द PGP, आई एम इन द PGP FABM, आई एम इन द EGD ABA डॉक्टर प्रोग्राम। You have lot of programs here, you have a lot of programs where you can apply. हमें करना क्या है? जैसे आप बोलोगे सर डॉक्टर प्रोग्राम तो मेरे लिए नहीं है, मुझे एनालिटिक्स प्रोग्राम नहीं करना है। वॉट एवर प्रोग्राम यू वॉन्ट टू डू और नॉट टू डू डजेंट मैटर, यू हैव टू सिलेक्ट ऑल। क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल। क्योंकि आपको एक चीज समझनी है, देर आर टोटल 21 IIMs यू हैव, आउट ऑफ दैट देर आर 4 IIMs। तो अगर वो 4 IIM को छोड़ोगे तो बाकी कोई भी IIM आपसे अलग से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवाएगा। Your CAT application form is your college application form in the IIMs. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गलती से कुछ IIM को सिलेक्ट नहीं किया यहाँ पे इन द नेम ऑफ प्रोग्राम्स में जो सिलेक्ट करना है, और आगे जाके आपका कैट का स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है एंड यू वांट टू अप्लाई दैट कॉलेज, बट आपने बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन में उसको क्लिक नहीं किया था, वो कॉलेज आपको बुलाएगा ही नहीं। तो रिस्क नहीं लेना है, सारे प्रोग्राम पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल करो। फिर वो आपको पूछेगा कि आपका अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो विच आर द सिटीज दैट यू आर प्रेफरेबल, दैट यू वांट टू कम। आपका प्रेफरेंस क्या है? आपको अगर आई एम इन PGP प्रोग्राम के लिए बुलाता है तो मुझे कौन सी पहली सिटी सिलेक्ट करनी है जहां पे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है? तो माय फर्स्ट सिटी इज मुंबई एंड देन आई सिलेक्ट सेकंड सिटी विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर मी इन दी ऑप्शंस। तो जो भी मुझे सिटी कंफर्टेबल है उस हिसाब से मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यू हैव टू सिलेक्ट द सिटीज। इसको बहुत टाइम, थोड़ा टाइम जाएगा बिकॉज यू कैनॉट एंटर द सेम सिटी इन टू प्रेफरेंस। अगर उन्होंने दो प्रेफरेंस आपको दी है तो आप सेम सिटी नहीं डाल सकते, आपको अलग सिटी डालनी है। कहीं जगह पे उन्होंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस आपको दिया हुआ है तो वही सिटी आप डाल सकते हो। यू कैनॉट सिलेक्ट अनदर ऑप्शन, जो ऑप्शन है उसी में से सिलेक्ट आपको सिटी करनी है। तो ये चीजें भरने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से भरना है, गलती नहीं करनी है। बिकॉज अगर आपने गलती से, समझो आप मुंबई में रहते हो और आपने गलती से सिटी बैंगलोर डाली है, यू कैनॉट चेंज योर सिटी नाउ, देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू बैंगलोर फॉर इंटरव्यू और यू हैव टू गो टू द सिलेक्टेड सिटी फॉर इंटरव्यू। तो आप सेम सिटीज नहीं डाल सकते, यू हैव टू सिलेक्ट। अगर आप उन्होंने दो प्रेफरेंस दिए तो दो अलग अलग सिटी आपको डालनी है। अगर एक प्रेफरेंस है तो आपको आपका चॉइस डालना है उसके हिसाब से। सो आई एम सिलेक्टिंग रैंडमली नाउ बिकॉज मुझे तो जाना नहीं है इंटरव्यू के लिए। तो मैं कोई भी सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आप आपके हिसाब से सिलेक्ट सिटी करोगे, जो भी सिटी आपको चाहिए, जो भी सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे नहीं सारे प्रोग्राम अप्लाई करना है, तो यू कैन सिलेक्ट द प्रोग्राम विच एवर प्रोग्राम यू टू अप्लाई। क्लिक ऑन द प्रोग्राम एंड सिलेक्ट द सिटी। आपको लगता है कि सर सारे प्रोग्राम में मुझे अप्लाई नहीं करना है, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट फ्यू सिटीज और फ्यू IIMs ओनली, देन यू कैन सिलेक्ट दैट। ओके, it will take a time
बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। सो आपको ठीक से संभल के ध्यान दे के भरना है कि कोई कोई गलती ना करो आप, ताकि आपके सिटी ऑफ प्रेफरेंस में अगर गड़बड़ हो गई तो आपको उसी सिटी में जाना पड़ेगा जिस सिटी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, जिस सिटी को आपने सिलेक्ट किया। ऑलमोस्ट हम लोग अपने फिनिश पे है फॉर्म के। फॉर्म अभी फिनिश होना आ गया है। इसके बाद दो ही नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपको भरना है। एक है आपका सिटी प्रेफरेंस फॉर द एग्जाम, एंड देन योर फाइनल पेमेंट ऑप्शन। तो ये आपका थर्ड लास्ट ऑप्शन है फॉर्म में फिल करने का। अभी हम लोग ऑलमोस्ट खत्म में आ गए। आई एम विशाखापट्टनम आ चुका है। ऑलमोस्ट लाइक वी आर ऑन द लास्ट मोड, यस। सो मैंने सारे आईएम्स को सिलेक्ट किया है और उस तरह से मैंने अपनी चॉइसेस ऑफ इंटरव्यू सिटी मैंने ले ली है। अब मैं उसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद now they are asking me that the city of preference that you have to select for your exam। आप कौन सी सिटी में आप एग्जाम्स देना चाहते हो, उसके आपको 5 प्रेफरेंसेस डालने हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हो, ओके, सो माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी मुंबई, जहां पे मुझे मुंबई महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है। सेकेंड सिटी आई सेलेक्ट अगेन मुंबई, या मे बी आई सेलेक्ट ठाणे। थर्ड आई सेलेक्ट वसई। Fourth, I'll select Navi Mumbai, and the fifth, I'll select Palghar. Which means if I stay in Mumbai, I'll get my center anywhere in Mumbai only, which is Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Palghar, in सब area में, which is Palghar to Churchgate, थाने टू नवी मुंबई। इसी लोकेशन में कहीं ना कहीं मुझे सिटी आएगी, और सिटी प्रेफरेंस के हिसाब से वो सिलेक्ट की जाएगी। आपके लिए सबसे पहला चॉइस आपका होगा मुंबई। तो आपको ट्राई करेंगे कि आपको सबसे पहले मुंबई में ही चांस दे। वी हैव सीन दैट पीपल हु फिल फॉर्म अर्ली वी गेट द सिटी फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस ऑलवेज। ओके, सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए लेट मत कीजिए। लेट जितना भरोगे उतना लास्ट सिटी प्रेफरेंस आपको मिलेगा चॉइस आपके सेंटर पर। ओके, तो आपने ये सिटी करेक्ट प्रेफ कर ली। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब ये आएगा आपका पेमेंट डिटेल्स, जहां पे आपको वो आपका नाम बताएगा और आपका एप्लीकेशन फी। तो कैट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फी 2500 है। नीचे यू हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट द प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट मोड। आई क्लिक योर, I'll select my choose of payment mode. Then I'll click I hereby declare that all the information are correct. Then I click on the capture data जो उन्होंने दिया है मुझे, एंड आई डू अ प्रीव्यू फर्स्ट। मुझे प्रीव्यू पे क्लिक करना है और देखना है एक बार वापस फाइनली कि जो डिटेल मैंने भरे है वो करेक्ट है, या उसमें मुझे कोई चेंजेस करना है। तो आई सिलेक्ट, आई सी ऑल द डिटेल्स करेक्टली, और माई एड्रेस, माई email ID, my mobile number, my mark sheets, marks, everything is correctly filled or not. Then I'll set my city preferences। उसमें अगर कुछ गलती से गड़बड़ हुई है तो मैं वापस चेंजेस कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। एक बार ये सारी चीजें चेक हो गई, मैंने सिटी प्रेफरेंस बराबर डाले या नहीं डाले है, मेरा सिग्नेचर या मेरा फोटोग्राफ सही है या नहीं है, एंड देन आई क्लिक ऑन ओके। ओके, वंस आई क्लिक ऑन ओके, देन आई सबमिट द फॉर्म।
I'm going to submit my form. Click on submit. नाउ वो मुझे सीधा पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, जहां पे जाके मुझे यूज करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई. यू कैन क्लिक ऑन यूपीआई. देयर इज अ ऑप्शन कॉल यूपीआई क्यूआर. तो पे नाउ, वो आपको क्यूआर देगा. क्लिक ऑन क्यूआर एंड डू द पेमेंट. वंस द पेमेंट इज डन, दे विल आस्क यू टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म. उसको डाउनलोड करके रखना है. आपको एक आपका ईमेल आईडी विच इज योर लॉगिन आईडी एंड क्रेडेंशियल आपके पास आएंगे. उसको सब सेव करके रखना है और उसे ठीक से यूज करना है. ओके, so that you have an option to go to SBI branch and do the payment also. SBI branch payment also. Whichever the options is comfortable for you, you can use that and do the payment. This is the way you are going to complete your application form. Please make sure that आप अपना application form जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरोगे, लेट नहीं करोगे. बिकॉज ऑन इफ यू सी दैट कि मैं लास्ट डे पे भर दूंगा, लास्ट डे पे बहुत लोग होंगे भरने के लिए, साइट क्रैश होगी, फिर आप भर नहीं पाओगे. ओके. Normally every year CAT extend the date to 1 or 2 days, but they charge extra on that. अगर वो एक डेट को एक्सटेंड करे तो एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे उसके लिए. तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा चार्जेस भरने का कोई सेंस नहीं बनता. Okay, so you fill the form on the right on as early as possible and keep your data secure, and so that you can use next time the login ID credential to download your admit card, because आपका admit card आपको आपके entry pass के लिए लगेगा. And this is the way you have to fill the form. So best of luck and do well. Thanks.